Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Assalamu alaikum. This is class 9, and today we are going to study lesson number 9. All is not lost. यानी सब कुछ नहीं खोया. This is lecture number 2, and in we have studied already the lesson, complete lesson, its text and translation, and we have discussed its important elements. Now in this session we will go towards the questions and answers. This is a very important portion. If you don't listen, if you don't watch if you don't involve yourself in this exercise, in this practice, you will lose 18 marks in your annual examination. This question answers portion is very much important. So here I am your teacher Abrar Hussain, presenting to you lesson number 9, all is not lost. Okay, students, how much beneficial this lesson, this lecture would be to you. You will know during this lecture, you will know some new English words, and after that, you will know about tenses that we use in our daily conversation. And I have told you earlier that past indefinite structure is being used in this lesson. So you will see, you will meet with new tenses of past indefinite tense in this session. And after that, you have studied that this lesson is about nursing profession, and you will know the value of nursing profession and their dutifulness. And after that, the sense of duty, devotion, and responsibility of nurses will be explained in this session too, while doing questions and answers. Now we will move towards the questions and answers. The first question is, what was the ambition of the nurse? You have studied the lesson, boys, and in the first paragraph, you know about the ambition of the nurse. What was her ambition? The nurse was, as we have studied earlier, the nurse was very devoted and true lady. यानी वो बहुत फर्शनास और बहुत एक सच्ची खातून थी. शी वॉज पैशनेट एंड पैट्रियोटिक. वो बहुत ज़्यादा पुरजोश और मुहिब्बुल वतन थी. शी वांटेड टू सी पीपल रिकवर्ड क्विकली फ्रॉम डिवास्टेटिंग एक्सीडेंट्स. वो तबाह कुन हादसात से मरीजों को सेहतयाब होते देखना चाहती थी. सो हर एम्बिशन वाज टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम डिवास्टेटिंग डिजीजेस. और इसके साथ उसकी ये ख्वाहिश भी थी कि वो दुनिया को बीमारियों से बचा सके. नाउ लुक इन द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ एक्साइटमेंट एंड पेन फॉर द नर्स. यानी नर्स के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दह चीज़ क्या थी, उसको किस चीज़ से ज़्यादा तकलीफ होती थी और किस चीज़ से ज़्यादा उसको खुशी होती थी. द नर्स वाज फेथफुल टू पेशेंट्स. As we have read earlier, the nurse was very loyal, very dutiful, very much responsible and faithful lady. वो बहुत ज़्यादा फर्शनास थी, बहुत ज़्यादा सेंसियर थी मरीजों के साथ. शी फेल्ट एक्साइटमेंट. उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती थी टू सी द पेशेंट मेकिंग क्विक रिकवरीज. जब वो मरीजों को जल्द सेहतयाब होते देखती थी तो बहुत ज़्यादा खुश होती थी. बट शी फेल्ट पेन फॉर पेशेंट्स. लेकिन वो मरीजों को उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी इफ़ दे वर नॉट रिकवरिंग एंड स्ट्रक विद एक्यूट न्यूरल डिजीजेस. अगर वो जल्दी सेहतयाब नहीं होते थे और बहुत सारी न्यूरल असाबी बीमारियों का शिकार होते थे तो उसको देखकर ये बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी. सो दिस इज़ द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन. Describe the nature of Hira's injuries. As we have studied in the lesson that there was a patient, her name was Hira, and she had some injuries. What was these injuries she was suffering? Her injuries, Hira had received severe head and spinal injuries. Her injuries about head and spinal, यानी उसकी रीढ़ की हड्डी में और उसके सर पर शदीद चोटें आई थी. As she was hit by a speedy bus while crossing a busy road.
यानी जब वो एक मसरूफ सड़क पर सड़क क्रॉस कर रही थी तो बस से टकरा गई थी। हर होल बॉडी वाज लाइफलेस, और उसके जिससे उसका पूरा जिस्म बेजान हो गया था। शी कुड सी ओनली, वो सिर्फ देख सकती थी, बट नॉट टॉक और मूव, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी या हिल नहीं सकती थी। यानी उसको इस तरह की बीमारियां लग चुकी थी, यानी उसका पूरा असाबी निज़ाम तबाह हो चुका था। नाउ क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स, व्हाट डिड राहिला's colleague ask her? Yani we have studied in the lesson, a colleague came to Rahila and asked her that what was she doing when Rahila was trying different exercises on the dead limbs or legs and arms of the patient Hera. So at that time, a nurse came to her and asked the question, "What did Rahila's colleague ask her? What was her reaction?" So her colleague asked a question, and what was her reaction about the question? इसका आंसर ये है कि यानी रहीला की दोस्त ने उसे क्या पूछा और उसका रहीला का फिर उसके पर रिएक्शन क्या था। तो इसका आंसर ये बनता है, रहीला's colleague came near to her. रहीला की एक दोस्त उसकी कोलीग उसके साथ थी, उसके पास आई, while she was doing exercises on Hira's arms and legs. जब वो हीरा के बाजुओं और टांगों पर एक्सरसाइजेस कर रही थी। एंड आस्क्ड हर, और उससे पूछा, व्हाट वाज शी डूइंग हियर, कि वो यहाँ पर क्या कर रही थी। फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल, यानी ये एक शिकस्त खुर्दा मरीज को या एक हारी हुई जंग को जीतने की कोशिश कर रही थी। सो लिसनिंग अ होपलेस कमेंट फ्रॉम हर कलीग, अपने साथी की तरफ से इस तरह मायूसी की बात सुनकर रहीला वाज टेकन अबैक, वो बहुत ज़्यादा हैरान रह गई, बहुत ज़्यादा शौक, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, एंड डिसअपॉइंटेड, और बहुत ज़्यादा मायूस हुई। टू लिसन द शेमफुल कमेंट्स, इस तरह के शेमफुल कमेंट्स सुनकर उसको बहुत ज़्यादा यानी परेशानी हुई। Next, question number 5 is, why did the senior doctor give the nurse an ironic smile? डॉक्टर्स उसके पास जब आते हैं तो उसको उसकी तरफ एक तंजिया सा क्यों मुस्कुराते हैं? इस सवाल का जवाब ये है कि द डॉक्टर गेव राहीला एन आयरॉनिक स्माइल थिंकिंग, यानी डॉक्टर राहीला के पास आया, और उसको राहीला के पास जब वो आया तो उसने उसको एक तंजिया मुस्कुराहट दी या तंजिया मुस्कुरा कर देखा। दैट हाउ फुल, ये सोचते हुए, थिंकिंग दैट, ये सोचते हुए कि हाउ फुल शी वाज, कि ये कितनी बेवकूफ़ औरत है। यानी वो मुस्कुराता इस वजह से है कि वो उसको बहुत बेवकूफ़ समझता था। शी वाज नॉट डॉक्टर, वो ये भी समझता था कि ये कोई नर्स है, डॉक्टर नहीं है। एंड डिड नॉट नो, और इसको पता भी नहीं है, दैट द पेशेंट इज़ अ होपलेस केस, कि ये पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। एंड शी वुड नेवर रिकवर, और वो ये ठीक नहीं हो सकती। तो इसलिए वो उसकी तरफ देखकर वो तंजिया मुस्कुराता है। नाउ लुक स्टूडेंट्स, लेट्स क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द सीनियर डॉक्टर आस्क हिम? So as we have studied in the lesson that a doctor passes an ironic smile, and another doctor, senior doctor, ask him a question, ask him a question about the patient Hira, whom Rahila was trying to recover. What did the senior doctor ask him? Senior doctor ने उसे क्या कहा था, यानी ये हम इसके आंसर में देखते हैं। Instead of encouraging Rahila due to her responsibility and hard work, the senior doctor got angry and said if you would spend a lot of time on a single patient, then they would have to recruit more nurses to attend other patients. यानी एक तरफ ये देखें स्टूडेंट्स, Rahila was trying to make patient recover. She was doing different exercises on the patient and she wanted to see the patient healthy. Instead of encouraging Rahila, तो इसकी बजाय रहीला को वो डॉक्टर इनकरेज करे, वो उसकी जिम्मेदारी को और उसके हार्ड वर्क को,
द सीनियर डॉक्टर गॉट एंग्री, इस वजह से उससे नाराज हो जाते हैं, एंड सेड, और उसको ये उसने कहा कि अगर तुम इफ़ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सिंगल पेशेंट, कि अगर तुम बहुत ज़्यादा वक्त एक पेशेंट पर गुजारोगी, देन दे वुड हैव टू रिक्रूट मोर नर्सेज टू अटेंड अदर पेशेंट्स, तो उनको दूसरे पेशेंट्स को देखने के लिए और ज़्यादा नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। दिस वाज आल्सो एन अनफेयर, ये बहुत ही एक नाजायज़ बात थी, एंड डिसअपॉइंटिंग एडवाइस फॉर राहीला, और राहीला के लिए भी एक मायूस कुन नसीहत थी। तो इस वजह से राहीला को एक मायूसी होती है, कोई अच्छा फील नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, राहीला डिड नॉट फॉलो द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। राहीला ने डॉक्टर्स की एडवाइस को, उनकी नसीहत को फॉलो नहीं किया, यानी उनकी बात नहीं मानी। वाज इट अ थॉरो प्रोफेशनल अप्रोच, क्या ये एक प्रोफेशनल अप्रोच थी मुकम्मल तौर पे? सपोर्ट योर आंसर विद लॉजिकल रीजंस, यानी एक लॉजिकल रीजंस के साथ अपने आंसर को सपोर्ट करें। यानी दो राहीला डिड नॉट फॉलो द डॉक्टर्स एडवाइस, राहीला ने डॉक्टर्स की नसीहत को फॉलो नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, एंड इट वाज हर ड्यूटी टू ओबे येट, और इसके साथ ये इसकी उसका फ़र्ज़ था कि वो उनकी बात मानती, बट इट इट वाज नॉट आल्सो प्रोफेशनलिज्म, और ये कोई एक उसके पेशे के लिहाज से भी ठीक नहीं था कि टू डिसोबे, उनको उनकी डिसोबे करती, बट शी वॉज नॉट येट अगेंस्ट नेचर, लेकिन इसके साथ देखें वो नेचर के भी अगेंस्ट नहीं थी। हर ड्यूटी एंड रूल्स, अपने फ़र्ज और अपनी जो उसके असूल थे, उनके असूल क्या थे कि पेशेंट्स को रिकवर करने ही उनके असूल थे ना, तो वो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट नहीं थी, पेशेंट्स के वो अगेंस्ट नहीं थी। शी जस्ट वांटेड टू प्रोवाइड चांस टू पेशेंट टू लिव हर लाइफ बाय प्रोवाइडिंग गुड केयर, वो इस तरफ ये चाहती थी कि एक पेशेंट को जिसको अटेंड करने की, जिसकी केयर की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको ज़्यादा गुड केयर, ज़्यादा अच्छी केयर मिले, जिससे वो सेहतयाब हो सके। दिस वाज नॉट रॉन्ग, सो इसलिए ये मेरे ख्याल में गलत नहीं था, इट वाज जस्ट अ ह्यूमनिज्म, ये एक इंसानियत की बात थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू लेस क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज हाउ डिड नर्स मैनेज टू कीप हीरा इन आईसीयू, यानी हीरा कैसे सॉरी राहीला कैसे हीरा को आईसीयू में रखने में कामयाब होती है? आंसर इसका है स्टूडेंट्स, अनडाउटेडली राहीला प्रूव्ड हर सेल्फ डिवोटेड एंड करेजियस, राहीला ने बेशक अपने आप को बहुत ज़्यादा बाहिम्मत और बहुत ज़्यादा फर्शनास साबित किया। शी रिस्क्ड हर कैरियर, और उसने अपने कैरियर को भी दो पर लगा दिया, और रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर्स टू लेट द पेशेंट स्टे इन द आईसीयू ड्यू टू गुड केयर एंड अटेंडेंस, क्योंकि आईसीयू में अच्छी केयर मिलती थी और अटेंडेंस मिलती थी, तो इसलिए वो अपने सीनियर डॉक्टर्स के अगेंस्ट गई और उनसे दरख्वास्त की कि उसको इस पेशेंट को इस आईसीयू में रखने की इजाज़त दी जाए। शी अश्योर्ड देम, और उसने उनको यकीन दिलाया दैट हीरा वुड रिकवर सून, कि उसकी कोशिश से हीरा जल्द सेहतयाब हो जाएगी। शी सक्सीडेड टू मैनेज टू स्टे हीरा इन आईसीयू इन दिस वे, तो इस तरह से वो हीरा को अब मैनेज आईसीयू में रखने के और का बंदोबस्त करने में कामयाब हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन शी केम बैक आफ्टर ट्रेनिंग वाज शी व्हाई वाज हर पेशेंट मिसिंग फ्रॉम बेड, यानी जब वो 3 माह के बाद अपनी ट्रेनिंग से वापस आती है, तो उसका पेशेंट वहाँ पे बेड पर क्यों नहीं था? सो इसका आंसर ये है कि व्हेन राहीला केम बैक आफ्टर 3 मंथ्स कोर्स, देन हर पेशेंट वाज मिसिंग फ्रॉम द बेड, जब वो वापस आती है तो उसका पेशेंट वहाँ पर बेड पर नहीं था। इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर हर, तो ये उसके लिए बहुत ही हैरानकुन बात थी। एंड व्हाई एंड शी वाज अफ्रेड, और वो डर रही थी अबाउट हर पेशेंट, और अपने पेशेंट के मतलब उसको वसवसे आ रहे थे और खौफ ज़्यादा हो रही थी। इनफैक्ट हर पेशेंट वाज नाउ एबल टू वॉक, यू पेशेंट उसका इस वजह से मिसिंग था क्योंकि वो चलने के काबिल थी, ऑन हर फीट, वो अपने पाँव पर चलने की काबिल थी, विद क्रचेस, बिसाखियों की, एंड हर बेड वाज ऑक्यूपाइड बाय एन अदर पेशेंट, और उसका बेड किसी और पेशेंट ने ऑक्यूपाई किया हुआ था, तो इस वजह से वो अपने बेड पर नहीं थी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ राहीला आफ्टर सीइंग हर पेशेंट ऑन क्रचेस, राहीला ने जब पहली दफ़ा अपने मरीज को बैसाखियों के साथ देखा तो उसका रिएक्शन क्या था? ओके
आंसर है इसका स्टूडेंट्स, राहीला वाज एक्साइटेड, happy, humble and thankful to her God to see her patient walking with crutches. राहीला बहुत ज़्यादा पुरजोश थी, खुश हुई, वो बहुत ज़्यादा आजिज़ी और इंकिसारी से अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करती है। इट वाज़ अ सैटिस्फैक्शन फॉर हर, तो उसको बहुत ज़्यादा इत्मीनान था दैट हर पेशेंट वाज़ रिकवर्ड, कि उसका पेशेंट सेहतयाब हो चुका था एंड एबल टू वॉक, और चलने के काबिल था। हर एफर्ट्स बोर फ्रूट, उसकी कोशिशें रंग ले आई थी एंड शी वाज़ नाउ एबल टू जस्टिफाई हर स्टांस, और अब इस तरह से उसने जो कदम उठाया था वो उसका जवाब पेश करने के काबिल थी। वो उसका जवाब क्या था कि यानी वो उसने डॉक्टर्स के ओपिनियन के अगेंस्ट उसको आईसीयू में रखा था। Question number 11, students. Do you think it is right to develop some kind of emotional attachment with the patient? यानी क्या ये ज़रूरी है कि बेहतर है कि पेशेंट्स के साथ एक जज्बाती लगाव रखा जाए? आंसर इन द लाइट ऑफ ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। इस लेसन की रोशनी में आप अपना आंसर देखें। अ पर्सन हु फाइट्स विद डेडली डिजीज नीड्स गुड केयर, यानी एक मरीज, इसका जवाब ये है कि एक मरीज जो एक तबाहकुन बीमारी से, एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला होता है, उसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, लव की ज़रूरत होती है, एंड अफेक्शन और शफकत की ज़रूरत होती है। अ पेशेंट कैन नॉट बी क्योर्ड, स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड फॉर्म वर्ब की आएगी, यहाँ पे ये मिस होगी, विद पुअर बिहेवियर एंड बैड ट्रीटमेंट, यानी एक बुरे तरीके से उसका इलाज करके और एक बहुत ही भद्दे बिहेवियर और बहुत ही रूड बिहेवियर के साथ एक मरीज का इलाज नहीं किया जा सकता। सो अ डॉक्टर और नर्स शुड कीप देमसेल्व्स कनेक्टेड इमोशनली विद द पेशेंट। तो एक नर्स को या एक डॉक्टर को जो उसको ट्रीट करते हैं, उसको मरीज के साथ बिल्कुल जज्बाती लगाव रखना चाहिए। अ पेशेंट विद ट्रस्ट एंड डॉक्टर, एक पेशेंट जो मरीज एक मरीज़ है जो डॉक्टर पर एतमाद करता है और नर्स पर एतमाद करता है, कैन बी क्योर्ड सून, वो जल्द ही सेहतयाब भी हो जाता है, उसका इलाज भी जल्दी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, स्टूडेंट्स, सच डू सच नर्सेज एग्जिस्ट इन रियलिटी? क्या ऐसी नर्सें जो पेशेंट्स के साथ इमोशनली अटैच होती हैं और उनको उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी देखभाल करती हैं और अपनी भी करियर की परवाह नहीं करती, मुलाजमत की परवाह नहीं करती, सिर्फ मरीज़ों की परवाह करती हैं? तो क्या ऐसी नर्सें मौजूद हैं? गिव अ रियल एग्जाम लाइफ एग्जाम्पल इफ सो, अगर ऐसा है तो फिर अपनी ज़ाती ज़िंदगी से कोई ना कोई मिसाल दें। जस्टिफाई द स्टेटमेंट, वी डोंट हैव मच होप फॉर हर, और इस स्टेटमेंट को भी आप जस्टिफाई करें कि हमें इसके लिए बचने की कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं। स्टूडेंट्स, हाँ, यस, अगर हम अपनी सोसाइटी का जायज़ा लें तो हम देखते हैं कि ऐसी नर्सेज, ऐसे लोग मौजूद हैं, कि उसकी रीज़न है। ऐसे लोगों की होने की एक रीज़न है कि हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जब एक बच्चे की तरबियत घर में शुरू होती है, तो माएँ, बड़े, वालिदैन उसको सबसे पहले ये सिखाते हैं कि दूसरों के साथ शफ़क़त कैसे करनी है, दूसरों के साथ पेश कैसे करना है, बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, मरीज़ों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, उनकी देखभाल कैसे करनी है, और ये उनको कहा जाता है ये कि इसके साथ यानी अच्छा का बर्ताव करना नेकी है। तो स्टूडेंट्स, ये चीज़ें होती हैं। अब इसको सिंपल वर्ड्स में मैंने आपके लिए आंसर की शक्ल में लिखा है। यस, देयर आर सच नर्सेज इन आवर सोसाइटी, ऐसी नर्सेज हमारे मुआशरे में मौजूद हैं, बिकॉज पेरेंट्स टीच यंग वन टू बी केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल फॉर अदर्स, कि वो ख्याल रखने वाले और दूसरों की इज्जत करने वाले बने। ये बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है। आई विटनेस्ड सच नर्स, मैंने खुद एक नर्स को मैंने ऐसी देखी, वो डिड नॉट लीव अ हार्ट पेशेंट अनअटेंडेड इन स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर्स, यानी एक नर्स ने को मैंने देखा, यानी ये एक पेशेंट को वो ट्रीट कर रही थी, उसको उसने नहीं छोड़ा, बावजूद इसके कि डॉक्टर्स कह रहे थे कि इसकी डेथ हो चुकी है। एंड शी कंटिन्यूड हिम पंपिंग ऑन चेस्ट अगेन एंड अगेन, और उसने बार बार उसकी चेस्ट पर पंपिंग करती रही। दैट रिस्टोर्ड द पेशेंट्स ब्रेथ, जैसे पेशेंट्स की सांस बहाल हो गई, एंड ही सेव्ड, और वो महफूज हो गया, वो बच गया। द डॉक्टर्स कमेंट दैट वी डोंट हैव मच होप फॉर हर इज नॉट राइट। मैं समझता हूँ कि इस लेसन में डॉक्टर ने जो कमेंट किया वो ठीक नहीं था। अ डॉक्टर शुड नेवर बी डिसअपॉइंटेड, एक डॉक्टर को हमेशा मायूस नहीं होना चाहिए फ्रॉम द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रहमत से।
तो हमारे माशरे में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको भी ऐसा होना चाहिए कि जैसा इस नर्सिंग का बिहेवियर था, इस नर्स का बिहेवियर था, और बाकी नर्सेस को भी ऐसा ही होना चाहिए। बिकॉज ओनली ड्यू टू दिस हम्बल एंड फ्रेंडली बिहेवियर we can save patients. Blessing, a smile is blessing. To see patients with a smiling face, to talk with them humbly, to talk with them in a friendly way is just a half dose of medicine. ये एक मरीज के लिए आधी दवा है। तो इसलिए तमाम डॉक्टर्स को और नर्सेज को इस पे इन बातों पे अमल करना चाहिए। तो यू सी स्टूडेंट्स हाउ the nurse Rahila treated the patient and how the doctors treated the patient. The difference in behavior is obvious, is very clear. And now you should decide that what's better and what's wrong. So let's move, students. Now come turn towards homework. The first assignment homework is for you. Hopefully, all of you have written the answers during the weekend of these questions. So the first of all, you should match these answer with your own written answers. तो आपने अपने जो आंसर लिखे हैं उन आंसर्स के साथ आपने इनको मैच करना है, देखना है कि कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है। नंबर 2, आपने जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि इस टेंस में पास्ट एंड डेफिनेट टेंस यूज हुआ है। Find out at least 10 sentences of past and definite tense used in the lesson we have just read, always not last। इसलिए लेसन जो हमने पढ़ा है इसमें से 10 सेंटेंसेस आपने सिंपली फाइंड आउट करने हैं कि कौन कौन से किस किस टेंस का स्ट्रक्चर पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का है। तो आप उन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, उन सेंटेंसेस को एक पेज पे लिखना है, और वो फिर हमने जो नया ग्रुप सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रुप इंग्लिश क्लास 9 के लिए बनाया है उसमें आपने मुझे वो पेश करना है, सेंड करना है, ताकि मैं उनको देख सकूं आपने सही सेंटेंसेस जो चूज़ किए हैं। ये छोटी सी आपकी रिटन असाइनमेंट है आज के लिए, और आपका ये क्वेश्चंस आंसर आप मैच करेंगे और आप इनको अपनी नीट कॉपीज पर लिखेंगे। दीज क्वेश्चन एंड आंसर्स वुड हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। Okay, students, thank you very much. You have watched this lesson, and hopefully, you might have learned something from this lesson. If you don't have any questions, you can contact me on my on the other group, English subject group. Okay, students, thank you very much, and Allah Hafiz.